Good morning, class. My name is Prahad Mani. I am your history teacher, and I am right now going to teach class 8 history chapter first. That is modern period of history. Modern period of history. As we have earlier known that history is a study of past. Meanwhile, a lot of persons just define it according to their ability and their thought. A person's name E.H. Carr. E.H. Carr, he just defined that history is never-ending process of speak from very past up to the now. That means बहुत शुरू से जो भी बातें की गई हैं, जो भी चीजें खत्म की गई, उन सभी चीजों को शुरू से लेकर अभी तक की प्रक्रिया को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास That means why we study history? हिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत क्या होती है? एक्चुअली हिस्ट्री हमारे मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और मनुष्य के हर एक फंक्शंस को बताता है कि ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। और रिकॉर्डेड फॉर्म में होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम पास्ट के बेसिस पर फ्यूचर और प्रेजेंट को जज कर सकते हैं। इसीलिए हमने हिस्ट्री को अपने चैप्टर्स में इंक्लूड किया है। क्लास 8, जैसा कि आपको क्लासेस में पहले ही बताया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स। ये हमारे जेम्स मिल साहब एक क्रोनोलॉजिकल रिसर्चर थे, इज बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड के रहने वाले जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को, दैट मींस इंडियन हिस्ट्री को, उन्होंने 3 अलग-अलग पार्टों में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स डन बाय different persons. First, ancient history. Ancient history. Second, medieval history. Third, modern history. First of all, we know that if we are classified in certain parts that will give you something about that particular era or time. In ancient history, we are taking consideration of our past, which related document will be available or not, that just considered under ancient history. However, the medieval history is incorporated in different books in different sections. That after BC, after 6 BC up to 15 AD, after 15 AD, that means anatomy. AD is stand for anatomy. However, the most knowledge about ancient history is just after archaeological research. Meanwhile, the medieval histories are known by the help of different writers in their book in modern history. He just classified that the part where different country comes to be a partner or doing a business in India. In that condition, there are several countries who are just coming to India in search of business. That means अगर मैं आपको कहूँ कि बिजनेस के कोई में भारत के आधुनिक इतिहास की रचना हुई है, तो इसमें कोई गलत और कोई दो बात नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से ले और कैसे। Most of people say that after 1498, when Vasco da Gama reaches to India, the period just initiated from that particular time, which is known as modern history. Meanwhile, some people say that after coming of British in India, the modern period is just incorporated after that particular time. But historians just take it part that foreigners when just come to India doing a business, that period is known as modern history. That means history is divided on the basis of different ruler at different time. Ruler of different time. First of all, in medieval period,
which is also known as Sultanate period, which you have already read in your class 8. However, ancient period you have studied in class 6. Looking forward from that particular time, we are studying modern period. That means after coming of foreigner, coming of European to India. India is a vast place and economically more sound place for years. In that particular thing, a lot of people comes to India for doing their business, such as Portuguese. First of all, Portuguese comes to India. After that, Dutch, and after that, England, and finally, France came to India. How they are coming to India, why they are just coming to India, and what are the effect of foreigners comes to India, and which kind of cultural differences and new attitudes will solicit for our modern period. That means transition of modern period. We are going to study transition of modern period. ट्रांजिशन ऑफ मॉडर्न पीरियड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो चीजें हमें हमेशा से ध्यान में रखनी। पहला, अगर आप अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मुगल एम्पायर जो इंडिया के लगभग 15th सेंचुरी से लेकर 1707 तक बहुत ही सही तरीके से शासन कर रहा था, कहीं ना कहीं उनके शासन में परेशानी आई और उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। दैट मींस वो टूट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, जिसके चक्कर में विदेशी आकर भारत में व्यापार करने लगे। इसका एक कोरिलेशन इससे भी समझ में आता है कि जब ऑटोमन एम्पायर ने लगभग लैंड एरिया को कैप्चर कर लिया, जिस तरीके से इंडिया आया जाता है, फिर लोगों ने दैट मींस यूरोपियन ने कहीं ना कहीं सी रूट से इंडिया आने की कोशिश शुरू की। इस शुरुआत में सबसे पहले नाम पोर्तुगीज का आता है कि हमारे यहाँ कालीघाट क्या है और वास्को डी गामा इंडिया में लगभग 4 बार है। 4 बार में उन्होंने अपने 400 टाइम ज्यादा का बिजनेस किया, जिस चक्कर में 200 सालों तक लगभग इस सी रूट पर कब्जा पुर्तगालियों का रहा। पुर्तगालियों की कब्जा रहने के साथ साथ उसी वक्त कुछ समाज और कुछ परिवेश में चेंजेस आए। एज फॉर एग्जांपल इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड कभी हुआ करता था। इस आइलैंड की पॉपुलेशन कम थी, लेकिन यहाँ का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया। अब इस प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की कैपेसिटी इकोनॉमिकली मोर साउंड हो गई, तो वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के चक्कर में आए। सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंग्लिश कम्स टू इंडिया इज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1602 में उन्होंने वहां पे महारानी दैट मींस क्वीन ऑफ इंग्लैंड से आगे लेकर भारत में व्यापार करने की बात शुरू की। लेकिन शुरू में इन्हें बहुत बड़ी कामयाबी तो मिली नहीं, 10-15 साल तक इनकी कामयाबी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं रह पाई। लेकिन अचानक से एक बार जहांगीर के दरबार में एक इंग्लिशमैन आया जिसे पर्शियन बहुत ही अच्छी आती है। पर्शियन सर डायलॉग्स करने के लिए या डायरेक्ट्स करने के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का आपका लैंग्वेज जाना पहचाना होना चाहिए, इससे प्रभाव बहुत ही बेहतर पड़ता है। इस डायलेक्ट के द्वारा ही उन्हें सबसे पहले सूरत में अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। दैट मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया वाज इन सूरत। सूरत में इन्होंने सबसे पहले 1617 ईस्वी में अपनी पहली कंपनी लगाई और कंपनी लगाने के बाद अलग अलग तरीके के सर्कमस्टांसेस ने धीरे धीरे ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा कर लिए। आज भारत जिसके लगभग 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कभी इससे भी बड़ा हुआ करता था। आज अगर आप देखते हो तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, बांग्लादेश अगर अलग हुआ है, ये सारे इनकॉर्पोरेटेड रहते तो भारत इससे भी बड़ा एक देश बना हुआ होता। इन सभी कंडीशंस में भारत के साथ आखिर क्या हुआ, कैसे भारत ने इन सारी परिस्थितियों के
से बाहर निकला और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। सबसे बड़ी टॉपिक हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ वाइटल फैक्टर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट किसी चीज का पड़ा तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि कल कारखानों का लगना और मशीन युग का आना, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारतीय इतिहास और दुनिया के इतिहास में सबके सामने पड़ा। इन सभी चीजों के बीच हमें क्लास 7 में अलग अलग डायनेस्टीज के विषय में हमें पता चला। क्लास 6 में हमने ये देखा था कि कैसे एक समाज का निर्माण हुआ है। कभी सारे दुनिया के लोग इधर उधर घुमा करते थे और घूमकर ही शिकार करके ही अपना खर्चा चलाया करते थे। फिर वो एक खेती थी, दैट मींस फॉर फार्मिंग दे आर लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और उसके बाद एक कम्युनिटी बनी, समुदाय का गठन हुआ। समुदाय का स्वरूप क्या बना, राज्य, और राज्य से जनपद, महाजनपद और एक्सेट्रा, इन सभी चीजों की इनकॉर्पोरेशन हुई। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे बड़ा ध्यान ये था कि भारत में कब, कहां और कैसे मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई। तो मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया कि अगर भारत के मॉडर्न पीरियड के जनक के रूप में किसी को देखा जाता है तो इसमें इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा हाथ है। भारत ही क्या, पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री के विषय में देखते हैं तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही माना जाता है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्रिंट कल्चर को भी हम भूल नहीं सकते। यानी जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस दुनिया में आने लगी, लोगों में बुद्धिमत्ता, दैट मींस नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा, उनका विजडम ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण वो मॉडर्न रिसर्च कर सके और मॉडर्न रिसर्चों के द्वारा उन्होंने अलग अलग मशीनों की शुरुआत की और इन मशीनों के द्वारा आज दुनिया जो है एक मॉडर्न एरा में जी रहा है। और मॉडर्न एरा में जीने के साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इस बेसिस पर हम 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा नेशनलिज्म और तीसरा प्रिंट मीडिया कल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात 1730 में सबसे पहले रिचर्ड आर्कराइट ने दुनिया का पहला मशीन बनाया। मशीनीकरण करना या औद्योगिकरण इतना आसान नहीं था। जैसे आप क्लास 10 में आएंगे तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन एक चैप्टर मिलेगा जहां पे आप लोग को ये समझने को मिलेगा कि कैसे पहले के जमाने में इंडस्ट्री चलते थे और उस इंडस्ट्रीज का जगह कैसे एक बड़े से घर में एक ही जगह सारी चीजों को तैयार कर उसको बेचने और बनाने की व्यवस्था की गई। या उसमें ये भी आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन कैसे किया गया कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की व्यवस्था के द्वारा पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण दुनिया का सिर्फ एक देश बन गया जिसे कहते हैं आज इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन। इसकी भी हिस्ट्री को हम क्लास 8 में आएंगे तो आगे ज्यादा बेहतर तरीके से। सेकेंड टॉपिक जिसे अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया, नेशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? राष्ट्रीयता होती क्या है और राष्ट्र का स्वरूप होना क्या चाहिए और राष्ट्र के विषय में आपको क्या समझ में आता है, इसका सबसे वाइटल टॉपिक यहाँ पे आती है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। तो बेटा आज और अभी तक हमने जो पढ़ाया इन सभी चीजों में आपको ये समझ में आया कि भारत में इंग्लैंड के आने के साथ और विदेशी कंपनियों को आने के साथ भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरू हुई। इसमें 2 युद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ बक्सर 1764 और बैटल ऑफ पलासी 1757। अच्छा, बैटल ऑफ पलासी में हुआ क्या? आपको याद होना चाहिए कि जब भारत में इंग्लैंड ने अपनी कंपनी चालू करने की कोशिश की, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और वो वहां की महारानी के साथ अपना ऑथेंटिसिटी यानी कि अधिकार लेकर यहाँ व्यापार करना शुरू किया। और हर देश का एक राइवल कंट्री होता है। हमें ये पहले से पता है कि फ्रांस जो है वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा राइवल कंट्री रहा बहुत दिनों तक। और इनके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हर समय भारत में भी ये दोनों देश 3 युद्ध लड़े। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, सेकेंड बैटल ऑफ प्लासी एंड थर्ड बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी इंग्लैंड को हार
बैटल ऑफ प्लासी में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया और थर्ड बैटल ऑफ प्लासी में इंग्लैंड स्थापित हो गया भारत में और फ्रांस को भारत से जाना पड़ा। इन सारे युद्धों का भी बहुत ज्यादा महत्व हमारे मॉडर्न पीरियड में पड़ा। कैसे हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित की और कैसे लोग हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए भी। तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लैंड और इंग्लैंड के असर को देखा, लेकिन एक चीज का और असर मॉडर्न पीरियड में बहुत ज्यादा है और उसे क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवादिता। हाँ, राष्ट्रवादिता होता क्या है, राष्ट्र होता क्या है और राष्ट्र का मायने क्या है? ये तीन प्रश्न आपके सामने आते हैं। सबसे पहले इन चीजों को अर्नेस्ट रेलन ने 1882 में डिफाइन किया था और उनके डेफिनेशंस को बाद में एक आर्टिकल के रूप में छापा गया और उस डेफिनेशंस को आज भी कहा जाता है व्हाट इज नेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्नेस्ट रेलन ने कहा कि राष्ट्र एक बहुत पुराने महान इतिहास से प्रेरणा लेकर आधुनिक और भविष्य के एक समूह के रूप में देश को बनाना ही एक राष्ट्र होता है, यानी कि राष्ट्रवादिता। आखिर राष्ट्र की बात अचानक से क्यों आई? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले जब आपने पढ़ा होगा मीडियल पीरियड में, हर एक किंगडम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, भारत जब आजाद हुआ तो भारत 535 अलग-अलग रजवाड़े थे, यानी कि किंगडम था। और इतना ही नहीं, और जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी भी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इतना ही नहीं, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका 1774 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका में लगभग 13 कॉलोनीज जो थे, यानी कि स्टेट्स जो थे, वो कंबाइन होकर एक देश का निर्माण किया। देश की जरूरत क्यों पड़ी और देश का स्वरूप ही क्यों होगा, ये सबसे बड़ी बात आती है। और राष्ट्रीयता का महत्व कैसे आया, लोगों के मनों में राष्ट्रीयता का प्रभाव कैसे पड़ा? तो हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज्यादा और सबसे कारगर कहीं हुआ तो फ्रांस की क्रांति के साथ पूरी दुनिया में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही ज्यादा प्रबल हुई और लोग ज्यादा से ज्यादा नेशनलिज्म से प्रभावित हुए। इस कंडीशन में राष्ट्रीयता की भावना फ्रांस में आई। और आखिर फ्रांस में ही क्यों आई? जैसा कि आपको क्लास 9 में आप जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा दैट मींस कि लुई 16 जब 14 जुलाई 1774 ईस्वी में वो अपने राजगद्दी पे बैठे तो उनकी एज मात्र 20 ईयर्स थी और फ्रांस में कभी 20 बिलियन करोड़ का कर्ज हो चुका था। इस कर्ज को पूरा करने के लिए उन्होंने छोटे लोगों पर ध्यान दिया। In that conditions, we have to just take part कि आखिर फ्रांस में हुआ क्या और फ्रांस की कंडीशंस ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ही ये राष्ट्रीयता की भावनाएं लोगों में भरने लगी। तो लुई 16 ने जब थर्ड स्टेट से कहा कि आपको टैक्स ज्यादा से ज्यादा देना होगा, उस स्थिति में मिडिल क्लास के परिवार वालों ने अलग अलग तरीके से वहां पे क्रांति की और उसी क्रांति का आज स्वरूप हम देखते हैं। हर देश एक छोटे छोटे राष्ट्र के रूप में अलग अलग राज्यों को इनकॉर्पोरेट करके बना हुआ। ये छोटे छोटे राज्यों के रूप में जब इनकॉर्पोरेट करके अलग अलग देश बने हैं तो इन देशों का क्या महत्व है? सबकी अपनी आइडेंटिफिकेशंस है, सबकी अपनी सिंबल्स है और सभी देश अपने आप को एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड महसूस करते हैं। जैसे अगर भारत की बात कर ले तो हमारी पहचान सबसे पहली सिंबल ट्रायंगल यानी कि ट्राई कलर फ्लैग। ट्राई कलर फ्लैग की बात अगर हम करते हैं तो तिरंगे की बात आती है। इस तिरंगे में हमारा केसरिया, व्हाइट और ग्रीन तीन रंगों को स्थापित किया गया। साथ ही साथ अशोक चक्र जो हमारा एक ग्लोरीफाइड पास्ट था उसको भी वहां पे जगह दिया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे।